آج ہم آپ کے سامنے ایمان، علم اور حیرت سے بھرپور ایک ایسا موضوع لائے ہیں جسے سن کر آپ کہیں گے واقعی قرآن اللہ کا کلام ہے۔ آج ہم بات کریں گے قرآن میں وہ سائنسی حقائق جو آج ناسا نے دریافت کیے۔ دوستو، قرآن 1400 سال پہلے اترا، لیکن جو باتیں آج جدید سائنس، ناسا اور یورپ کی سائنسی ایجنسیاں ڈھونڈ رہی ہیں، قرآن نے وہ باتیں اسی وقت بتا دی تھیں، اور اسی لیے ہم نے 5 بڑی آیات کو منتخب کیا ہے جن پر پوری دنیا کی سائنس آج تحقیق کر رہی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، سورۃ القامہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیوں نہیں ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ انسان کی انگلیوں کے نقش تک دوبارہ بنا دیں۔ اب ہم آیت نمبر 4 کو آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم انسان کو دوبارہ پیدا کریں گے، اور صرف جسم ہی نہیں بلکہ انگلیوں کے نقش بھی ویسے ہی بنا دیں گے۔ آپ سوچیں، انگلیوں کے نقش 1400 سال پہلے کون جانتا تھا کہ انگلیوں پر سب کا اپنا الگ نقش ہوتا ہے؟ نہ مائکروسکوپ تھا، نہ پولیس میں فنگر پرنٹ سسٹم، نہ کوئی سائنس، لیکن قرآن نے پہلے ہی بتایا انسان کی انگلی کا نقش دوسرے انسان سے کبھی نہیں ملتا۔ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ ہر انسان کا فنگر پرنٹ منفرد ہوتا ہے۔ فورینزک سائنس کے مطابق دنیا میں 8 ارب انسان ہیں، مگر ایک بھی شخص دوسرے کے نقش کا مالک نہیں۔ حتیٰ کہ جڑواں بچے ٹوئنز بھی شکل سے ایک جیسے ہو سکتے ہیں، مگر فنگر پرنٹس نقش ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یہ وہ چیز ہے جو قرآن نے پہلے ہی واضح کر دی۔ فنگر پرنٹ ہمیشہ زندگی بھر ایک جیسے رہتے ہیں۔ بائیومیٹرکس کے مطابق انسان جتنا مرضی بڑا ہو جائے، اس کے فنگر پرنٹس نہیں بدلتے۔ موت کے بعد بھی کچھ وقت تک یہ محفوظ رہتے ہیں۔ اس لیے دنیا بھر میں پولیس، پاسپورٹ آفس، ایئرپورٹ، موبائل لاک، سب میں فنگر پرنٹ سسٹم استعمال ہوتا ہے۔ یہ سب قرآن کی آیت کے الفاظ بنانا ہو اس کی انگلیوں کے نقش سے ملتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ فنگر پرنٹس انسان کی سب سے یونیک پہچان ہیں۔ انسان کی اصل شناخت فنگر پرنٹس کی وجہ سے ممکن ہے، کیونکہ یہ کبھی کسی سے نہیں ملتے، نہ ہی بدلتے ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے بیان کی۔ ہم انگلیوں کے نقش بھی دوبارہ بنا دیں گے۔ 2 آسان مثالوں اسی اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ مثال نمبر 1، موبائل لاک۔ اب جب انگلی موبائل پر رکھتے ہیں تو موبائل فوراً پہچان لیتا ہے کہ یہ آپ ہے۔ کسی اور کی انگلی لگے موبائل کھلتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر انسان کا نقش مختلف ہے۔ مثال نمبر 2، پولیس کی تحقیقات۔ دنیا بھر کی پولیس دروازے، گاڑی، سامان پر لگی انگلیوں کے نقش سے مجرم پکڑتی ہے۔ اگر ایک بھی فنگر پرنٹ دنیا میں ملتا ہوتا تو یہ سارا سسٹم ناکام ہو جاتا، اور قرآن اس حقیقت کو 1400 سال پہلے بیان کر چکا تھا۔ اب ہم آیت نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ المومنون آیت 14۔ ترجمہ: پھر ہم نے نطفے کو چپک جانے والی شکل یعنی القاء میں تبدیل کیا۔ اب ہم اسے تھوڑی تفصیل کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے ابتدائی مرحلے کو بیان فرما رہے ہیں۔ نطفہ وہ قطرہ ہے جس سے زندگی شروع ہوتی ہے، اور پھر وہ القائی بن جاتا ہے، یعنی ایک چپکنے والی جمے ہوئے خون جیسی شکل۔ یہ مرحلہ رحم یوٹرس کے اندر ہوتا ہے، جہاں نطفہ پہلے خلیات میں تقسیم ہوتا ہے، پھر رحم کی دیوار سے چپک جاتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو انسان تو ہزاروں سال تک جان ہی نہیں سکا، مگر اللہ نے قرآن میں پہلے ہی بیان کر دیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ سائنس اسے امپلانٹیشن کہتی ہے۔ 2025 کی جدید ایمبریولوجی تحقیق کے مطابق نطفہ جب رحم میں پہنچتا ہے تو تیزی سے خلیات میں تقسیم ہوتا ہے۔ چند دن بعد وہ رحم کی اندرونی سطح سے پوری طاقت کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ یہ مرحلہ بالکل ویسا ہے جیسا قرآن نے القاء کہا، یعنی چپک جانے والی چیز۔
साइंसदानों ने जदीद माइक्रोस्कोप के जरिए देखा कि एम्ब्रियोनिक सील जनीन के खलियात रहम की दीवार में घुसने के लिए एंजाइम्स खारिज करते हैं और फिर वाकई वो चिपक कर जिम जाते हैं। ये वही बात है जो कुरान ने 1450 साल पहले बताई थी, जब न माइक्रोस्कोपिस्ट थे, न कोई साइंसी लेबॉर्ट्री, न कोई नासा जैसी तहकीक का। अब हम इसको मिसालों के जरिए समझते हैं। मिसाल 1, सोचें कि आप एक गीला बीज नरम मिट्टी पर रखते हैं। थोड़ी देर बाद वो मिट्टी में धंस जाता है और चिपक जाता है। बिल्कुल इसी तरह नुत्फा रहम की दीवार से चिपक जाता है और वो अलका की शक्ल इख्तियार करता है। मिसाल 2, अगर आप एक स्टिक की ड्रॉप चिपकने वाला कतरा को किसी नरम जेल पर रखें तो वो कतरा आहिस्ता आहिस्ता जेल के अंदर घुस जाता है और मजबूती से चिपक जाता है। जनीन भी रहम में ऐसे ही चिपकता है जिसे कुरान ने अलका कहा है। भाइयों, अब हम तीसरी आयत की तरफ आते हैं। तीसरी आयत में अल्लाह ताला जमीन के बारे में क्या फरमाते हैं? सूरत अल-गाशिया आयत नंबर 20, सूरत अल-नाज़िआत आयत नंबर 30। तर्जमा: और जमीन की तरफ देखो कि इसे कैसे बिछाया गया और उसके बाद जमीन को फैलाया, डेह बेज़वी गोल शक्ल देकर बिछाया। अब हम इसे थोड़ी तफसील के साथ समझते हैं। जब कुरान कहता है कि जमीन को बिछाया गया तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने जमीन को इंसानों के लिए रहने के काबिल बनाया, इसे हमवार रास्ते, मैदान, पहाड़ और बस्तियां अता की। और जब कुरान कहता है देहा तो अरबी जुबान में डेह इस बेज़वी ओवल शक्ल को कहते हो जो शतर मुर्ग के अंडे की होती है। यानी कुरान ने यह बताया कि जमीन फैली हुई है, सरफेस स्ट्रक्चर, लेकिन इसकी असल शक्ल गोल और बेज़वी है। ये बात इस वक्त कोई इंसान नहीं जानता था। अब देखते हैं साइंस इस बारे में क्या कहती है। साइंस कहती है जमीन मुकम्मल गोल नहीं बल्कि ओवलेट स्फेयर बेज़वी गोल शक्ल है, कतबूहे पर दबी हुई और दरमियान से थोड़ी फैली हुई है। जमीन मुसलसल घूम रही है, इसी वजह से दिन और रात बनते हैं। जमीन सूरज के गिर्द मदार में घूमती है। नासा के सैटेलाइट्स, खास तौर पर अर्थ ऑब्जर्वेटरी, जूनो मिशन, बिल्लो मार्बल प्रोजेक्ट, जमीन की हजारों तस्वीर ले चुके हैं जिनमें जमीन की यही शक्ल वाज़े नजर आती है, गोल मगर थोड़ी बेज़वी, जो कुछ साइंस ने 20वीं सदी में साबित किया, कुरान ने 1400 साल पहले बता दिया था। अब हम उसको दो मिसालों के जरिए समझते हैं। मिसाल 1, एक शतर मुर्ग का अंडा लें, वो गोल भी होता है और थोड़ा बेज़वी भी। बिल्कुल यही शक्ल जमीन की है। कुरान ने लफ्ज़ डेह इसीलिए इस्तेमाल किया क्योंकि अरबी में ये लफ्ज़ इसी बेज़वी गोल चीज के लिए आता है। मिसाल 2, किसी बड़े गुब्बारे पर हाथ फेरी, जब गुब्बारा फूंक जाता है तो वो गोल भी लगता है और मुख्तलिफ समतों में थोड़ा फैला हुआ भी। जमीन भी इसी तरह एक फैला हुआ गोल जिस्म है, जैसा कि कुरान ने बताया। कुरान ने जमीन की शक्ल, जमीन के फैलाव और इंसानों के रहने के काबिल जमीन के निजाम को 1400 साल पहले बयान कर दिया। अब हम इल्मी पॉइंट्स नंबर 4 की तरफ आती है। सूरत अल-अंबिया आयत 32। तर्जमा: और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया है। अब हम इस आयत की थोड़ी सी तफसील समझते हैं। अल्लाह ताला ने बता दिया कि आसमान इंसानों के लिए एक हिफाजती छत, प्रोटेक्शन रूफ की तरह है। ये बात इस दौर में नामुमकिन थी कि कोई इंसान जान सके कि सूरज की शुआएं कितनी खतरनाक हैं, खला से कितना तापकारी मवाद आता है, आसमान के ऊपर कौन सी तह जमीन को बचाती है। लेकिन कुरान ने साफ बता दिया कि आसमान इंसानों की हिफाजत करता है। अब देखते हैं साइंस इस बारे में क्या कहती है। साइंस कहती है अर्थ एटमॉस्फेयर, जमीन का फिजाई गिलाफ, एक हिफाजती शील्ड है जो जमीन को तबाह होने से बचाती है। ओजोन लेयर, हिफाजती गैस की तह, सूरज की खतरनाक यूवी रेज, नुकसान पहुंचाने वाली शुआ है, को रोक लेती है। ये आयत में अल्लाह ने ए महफूज छत कहा। साइंस ने इसे प्रोटेक्टिव लेयर, हिफाजती पर्दा कहा। मतलब दोनों एक ही हकीकत की तरफ इशारा करते हैं। नासा, अमरीकी खलाई इदारा की रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ओजोन लेयर ना हो तो
इंसानों की जल्द जल जाए, पौधे मर जाएं, पानी का निजाम तबाह हो जाए, जिंदगी चंद घंटे भी ना चल सके। ये सब वही है जो कुरान ने कहा कि आसमान एक महफूज छत है। एटमॉस्फेयर मैक्यूरस खला से आने वाले पत्थरों को भी जला देता है। ये भी हिफाजत है जो हम रोज देखते हैं पर समझ नहीं पाते थे। अब आखिर में दो मिसालें समझते हैं। मिसाल एक, जैसे अब गर्मी में सर पर छतरी रखते हैं ताकि धूप ना लगे, ऐसे ही आसमान की ऊपर वाली तह पूरी जमीन के लिए एक बड़ी छतरी है। अगर ये छतरी ना हो तो सूरज की शुआएं सब कुछ जला दी। मिसाल दो, रात को जब मच्छरदानी नीचे लगा लेते हैं तो वो अंदर आने वाले खतरे से बचाती है। बिल्कुल इसी तरह ओजोन लेयर जमीन को आसमान से आने वाले नुकसानदेह शुआओं और खला के पत्थरों से बचाती है। ये वही महफूज छत है जिसका कुरान में जिक्र है। अब हम 5वीं आयत की तरफ आते हैं। सूरत इज़ारात आयत 47। तर्जमा। और आसमान, कायनात हमने अपनी कुदरत से बनाया और हम इसे फैलाते जा रहे हैं। अब हम इसे थोड़ा तफसील से समझते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला साफ बता रहे हैं कि ये पूरी कायनात एक जगह राविकी हुई नहीं है, बल्कि ये फैल रही है, यानी वक्त के साथ बड़ी हो रही है। ये बात अलिफाविस दौर में किसी को भी मालूम नहीं थी। ना दूरबीनें थीं, ना साइंसी लेबॉरेटरियां, ना हबल जैसी बड़ी दूरबीनें। अल्लाह ने 1400 साल पहले ही बता दिया कि कायनात फैल रही है। और आज जदीद साइंस बिल्कुल यही बात कहती है। साइंस इस बारे में क्या कहती है? ये बात साइंस में सबसे पहले एक साइंसदान ईडॉन हबल ने सामने लाई। ईडॉन हबल ने एक बहुत बड़ी दूरबीन से देखा कि दूर दराज कहकशाएं हमसे दूर होती जा रही हैं। इसका मतलब यह है कि कायनात हर वक्त बड़ी हो रही है। बाद में नासा की बड़ी दूरबीनें और साइंसी रिपोर्ट्स ने भी यही साबित किया कि आसमान में मौजूद सब कहकशाएं एक दूसरे से दूर जा रही है। कायनात हर लम्हा फैल रही है। कायनात के फैलने का नक्शा भी बनाया गया है, जैसे कायनती बैकग्राउंड सिग्नल कहा जाता है। ये सब मुशाहदात कुरान की बात की सच्चाई दिखाते हैं। आइए अब हम मिसालों से समझते हैं। पहली मिसाल ये है, अब एक गुब्बारा लें और उस पर कलम से छोटे छोटे नुक्ते लगा दें। अब जब आप गुब्बारा फुलाएंगे तो ये सारी नुक्ते एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। ऐसे ही पूरा आसमान और पूरी कायनात फैल रही है। अब हम दूसरी मिसाल समझते हैं। फर्ज करें अब दरिया के किनारे खड़े हैं और दो कश्तियां आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से दूर हो रही हैं। ये दोनों कश्तियां खुद भी चल रही हैं और पानी का बहाव भी उन्हें दूर ले जा रहा है। कहकशाएं भी इसी तरह एक दूसरे से दूर जा रही है। इसी को साइंस वाले कायनात का फैलाव कहते हैं।